Hello students and welcome back again in geography class. I am your geography teacher Anand Pandey. I hope all of you fine and safe at your home. Students, now today I am going to start the new chapter and this chapter is about the volcanoes. Okay students, now you see in your book the chapter number 7 is about the volcanoes. Now in this chapter we are going to understand about the meaning of the volcano, the types of the volcano. Now the types of the volcano means the active volcano, dormant volcano and the extinct volcano. Then after that we are going to understand the effects and the constructive and the destructive important volcanic zones of the world. So students, again now I am going to give you some important clues about this chapter. Students, in this chapter basically our main focus on the volcano or the formation of the volcano, how the volcanoes occurs on our earth surface. So in the first part, now before starting this chapter, now we are going to divide the chapter for understanding to us. In the first part of this chapter, we are going to understand about the formation and the causes of the volcano, why the volcanoes occur. Then after that, in the second part, we are going to understand about the types of the volcano, how many types of volcanoes are present on our earth surface. Then in the last part of this chapter, we are going to cover about the effects of the volcano. The effects of the volcano means that the constructive effect and the destructive effect. And in the last, we are going to understand about the zone, the volcanoes that spread all over the world. So just this one is divided into the zone. So through the help of the map, we are going to understand about the distribution of the volcanoes all over the world. So now first part we are going to start, and in the first part, first we are going to introduction part. Okay students, now you see that the forces relating to or arising from the interior of the earth are called the endogenic forces. There are two types of endogenic forces, the diastrophic and the sudden movements. In this chapter we shall concern ourselves with the sudden movements. The sudden movements bring about the instant changes on the surface of the earth and hence their name. Okay, so before starting our topic volcano, so first we are going to understand about the reasons, okay, or introduction parts. So first we are going to understand about the volcanoes, how the volcanoes occurs and the main system. Okay, तो जैसे अभी हम लोगों ने बेटा ये पैराग्राफ पढ़ा और समझा कि जो वॉल्केनो होता है वो एक सडन मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे अभी हम लोगों ने जब चैप्टर 3 पढ़ा होगा तो उसमें हम लोगों ने एक चीज समझी थी. वो क्या चीज समझी थी कि जैसे हमारे अर्थ पे टू टाइप्स की फोर्स काम करती हैं, एक एंडोजेनिक फोर्स काम करती है और एक एक्सोजेनिक फोर्स काम करती है. एंडोजेनिक फोर्स जो होती है बेटा वो जमीन के या हमारे अर्थ के अंदर काम करती है और जो एक्सोजेनिक फोर्स होती है वो हमारे जमीन के ऊपर काम करती है. लेकिन जब हम लोग बात करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्केनोस, तो एक्चुअली द वॉल्केनोस आर डिपेंड ऑन द एंडोजेनिक फोर्स. जो हमारा वॉल्केनो का इरप्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो एंडोजेनिक फोर्स पे. क्योंकि अभी तक आप लोग जो क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जब वॉल्केनो इरप्ट करता है तो जो अर्थ के अंदर मैग्मा होता है वो बाहर आता है और जब वो अर्थ पे पहुंचता है तो वो लावा के फॉर्म में होता है. तो इसका मतलब जो चीज इरप्शन हो रहा है तो सबसे पहले हमें अर्थ के अंदर के बारे में समझना होगा. तो अर्थ में जो पहले एंडोजेनिक फोर्स है उसी की वजह से ये काम करता है, जो एक सडन मूवमेंट होती है. मतलब कि एक सडनली एक अंदर मूवमेंट हुई और उसके थ्रू वॉल्केनिक इरप्शन हुआ. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द कॉजेस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन. The volcanic eruptions are sudden movements associated with the internal force of the earth. A volcano is a vent in the earth crust from which fiery hot magma erupts from the earth interior. The main causes of the volcanic eruption are the following. Number 1, heat and pressure inside the earth.
Temperature and the pressure both increase from the surface towards the center of the rock. Rocks are bad conductor of heat. So the earth heat does not escape on its own. Instead, it melts the rocks and builds up the great pressure. The pressure forces that heat to find the escape route through the fissures and cracks in the rocks. Okay. So now the next point that we are going to understand about the causes of the volcano. अब हमारा जो अगला पॉइंट है, जैसे अभी तो हम लोगों ने एक चीज ऊपर इंट्रोडक्शन में समझ ली कि जो वॉल्केनिक का इरप्शन होता है मेनली वो किस पे डिपेंड करता है, एंडोजेनिक फोर्स पे। अब हमें एंडोजेनिक फोर्स पे ही वर्क करना है और उसी को बेस बना के इस चैप्टर को समझना है। जैसे कि पहला जो हम लोगों ने कॉज पढ़ना है, जो समझना है, वो कॉज है हमारा हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ। मतलब हमारे जमीन के अंदर जो हीट और प्रेशर है, मतलब जो अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से जो वहां पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो इस थ्योरी को हमें समझना है। तो जो हीट और प्रेशर था, एक्चुअली दिस हीट एंड प्रेशर क्रिएट द एंडोजेनिक फोर्स, और यही हीट और प्रेशर क्या होता है बेटा, इंडोजेनिक फोर्स को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमें ऊपर की तरफ एरप्शन देखने को मिलता है। तो अब समझते हैं हम लोग हीट एंड प्रेशर क्या चीज है। अब पहला जो पॉइंट आता है कि एक्चुअली अब जमीन के नीचे हीट और प्रेशर आया कहां से। अब नीचे बेटा आग तो नहीं जलाई जा रही है या कोई मशीन लगाई गई है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम लोग अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे चैप्टर, तो हमने लेयर्स के बारे में पढ़ा, क्रस्ट, मेंटल और कोर, उसके टेम्परेचर के भी बारे में पढ़ा। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं वैसे वैसे हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर हम लोग कोर की बात करें, जो हमारा एकदम अंदर का भाग है जमीन का, हमारे अर्थ का, कोर की बात करें तो कोर का टेम्परेचर बेटा 5500 डिग्री सेल्सियस है। अब 5500 डिग्री सेल्सियस मतलब अगर इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर विद द सन सरफेस टेम्परेचर, तो इट इज सेम। अगर हम लोग सन के सरफेस से इस टेम्परेचर को इसको कंपेयर करें तो ये लगभग सेम है। मतलब जितना सन का टेम्परेचर है उतना ही हमारे अर्थ का है। तो 5500 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया बेटा ये बहुत ज्यादा है। अगर कोई भी चीज वहां पे रहेगी तो वो उस गर्मी में या उस हीट में नहीं रुक पाएगी। और दूसरी बात क्या है, जो हमारे अर्थ के नीचे का हिस्सा है वो रॉक्स से बना हुआ है, एंड द रॉक्स आर द बैड कंडक्टर, ऑल ऑफ यू नो दैट। और आप जानते हैं कि जो रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। मतलब कि वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और हीट के सामने ज्यादा देर तक वो नहीं रह पाते हैं, और वो क्या करते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और वो मोल्टेन फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट हो जाते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो अभी आप समझ जाएंगे कैसे। अगर हम लोग अपने गैस पे जो एलपीजी सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं और चूल्हा जलाते हैं, तो अगर गैस पे अगर हम लोग भगोने में पानी रख दें और उसको खूब उबालें और उसको प्लेट से हम लोग ढक दें, तो प्रेशर क्रिएट हो रहा, क्योंकि जो लिक्विड था अब वो क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। अब जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया तो उसने क्या किया, वेपर निकालना शुरू किया। जब वेपर निकालना शुरू किया तो वेपर को निकलने की जगह थी नहीं, क्योंकि अब जो हमारा वो था, जो भगोना था वो तो ढका हुआ था, तो अब जो वेपर था वो निकल नहीं पाया। तो वो धीरे 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 क्या करने लगा, प्रेशर क्रिएट करने लगा। जब उसने प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट कर दिया और प्लेट को बर्दाश्त करने की क्षमता चली गई, तो आप देखते हैं प्लेट अचानक से नीचे गिर जाती है, तड़ाम से प्लेट गिर गई और भाप अचानक से निकलने लगा। और कभी कभी तो इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि बॉयल करते करते पानी हमारे गैस पे गिरना शुरू हो जाता है, गैस स्टोव पे गिरना शुरू हो जाता है। तो सेम अगर इस प्रोसेस को हम लोग समझ के और वॉल्केनिक एरप्शन के बारे में समझे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, हीट बहुत ज्यादा बढ़ी अचानक से। तो जब हीट बहुत ज्यादा हो गई वहां पे, तो जो रॉक्स थे वो मोल्टेन फॉर्म में थे, अब वो बॉयल होना शुरू हो गए। जब वो बॉयल होना शुरू हो गए तो उनमें से वेपर भी हो गया, वो प्रेशर उसने क्रिएट किया हीट की वजह से, और धीरे धीरे अब वो मोल्टेन फॉर्म ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गया। और प्रेशर इतना ज्यादा था कि इसका इरप्शन होना ही था, जो कि हमें पता है। अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे अगर हम लोग वॉल्केनो के बारे में समझे, तो जैसे सपोज दैट ये हमारा एक वॉल्केनो का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है यहां पे समझने के लिए, ठीक है।
अब यहां पे जो वॉल्केनो होता है ये एक तरह से वेंट, इस जो पाइप मैं बना रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड द वेंट, दैट इज कॉल्ड द वेंट, इसे हम लोग वेंट बोलते हैं। और ये जमीन के नीचे क्या है, ये मॉल्टेन मटेरियल है, मतलब जो हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ है ये मॉल्टेन मटेरियल, दिस इज कॉल्ड द मॉल्टेन मटेरियल। ओके, ये मॉल्टेन मटेरियल हो गया, ठीक है। अब ये जो हीट और प्रेशर की वजह से धीरे धीरे ये क्लाइंब करने लगा। जब ये धीरे धीरे क्लाइंब करने लगा और ये वेंट के थ्रू अब क्या हुआ, ये एकदम ऊपर आके इस तरीके से इसका इरप्शन हो गया। तो जब ये इसका इरप्शन होगा तो दैट इज द लावा, दैट इज द लावा दैट कम्स आउट ओके फ्रॉम द वॉल्केनो। अब ये जो जमीन पर आ रहा है इसे लावा बोलते हैं, एंड दिस मॉल्टेन मटेरियल इज कॉल्ड द मैग्मा, और इसे हम लोग मैग्मा बोलते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। Now the next cause is the plate tectonics. Most volcanic eruptions take place near the plate margins. The earth crust is made up of a series of the movable plates. When these plates are slide past each other to collide against each other due to the intense heat inside the earth core, their edges produce the faults along the lines and of weakness. It is along these plate boundaries that crust to weaken and through which hot magma gushes out, leading to volcanic eruption. The same forces that causes the earthquakes also volcanic eruption. Okay. अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमें समझना है वो है प्लेट टेक्टोनिक या टेक्टोनिक प्लेट्स। ओके, तो एक्चुअली अब क्या है बेटा, अब दोबारा हम लोग समझते हैं, क्योंकि ये थ्योरी किस पे डिपेंड करती है, एंडोजेनिक फोर्स पे डिपेंड करती है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट समझना है हमें, उसको समझना है प्लेट टेक्टोनिक्स को। एक्चुअली जो हमारा अर्थ का लिथोस्फीयर है, यानी कि जो क्रस्ट लेयर है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो प्लेट टेक्टोनिक्स पे डिपेंड करता है, वो प्लेट्स पे डिपेंड करता है। और ये जो प्लेट्स होती है बेटा, इस तरीके से ऑलवेज दे आर मूविंग टू ईच अदर और इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या करती हैं, मूव करती हैं, धीरे 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 इस तरीके से इनकी मूवमेंट होती रहती है। तो जब नीचे से प्रेशर क्रिएट होता है, जब नीचे से मैग्मा ऊपर की तरफ आता है, तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स होती हैं इनके साथ इनका टकराव होता है। जब कभी कभी इन प्लेट्स के बीच में जो गैप खाली हो जाता है, उसके बीच से भी ये मैग्मा बाहर निकल जाता है। कभी कभी जब ये प्लेट्स क्या होती हैं, जब इनके बीच में जगह नहीं मिलती है तो बराबर इस तरीके से वो हिट करता है। किसको? जैसे ये मैग्मा आया और ये प्लेट टेक्टोनिक्स है, उसको इस तरीके से हिट कर रहा है। अब जब ये हिट कर रहा है तो ये धीरे धीरे प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है, वीक पड़ने लगती है और इनके अंदर फॉल्ट आता है। जब इनके अंदर फॉल्ट आता है तो भी हमें इरप्शन देखने को मिलता है। Now the next point that we are going to cover, the magma chamber. Okay, now in this magma chamber, understand. The molten material while still under the earth crust melts weak rocks and creates a huge chamber or itself. Fresh magma continues to pour inside the chamber since the magma contains silicate material, gases and water vapors. The pressure always acts vertically upwards. Once a route is found, it rises to the surface. This is why many volcanoes are found along the plate boundaries. However, all major volcanoes have beneath them a huge magma chamber or reservoirs which is joined to the earth and surface by it is known as the volcanic vent. Okay, अब हम लोग बात करते हैं मैग्मा चेंबर की। तो चेंबर का मतलब एक बॉक्स की तरह हम मान लेते हैं, अगर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं तो मैग्मा चेंबर क्या है पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी एक टॉपिक को कवर किया था, हीट एंड प्रेशर इनसाइड। तो हीट एंड प्रेशर इनसाइड की वजह से क्या हुआ, जो हमारे रॉक्स हैं वो किस फॉर्म में थे, मॉल्टेन फॉर्म में थे। मॉल्टेन फॉर्म में क्यों थे, क्योंकि हमें पता है कि मॉल्टेन फॉर्म में इसलिए थे बिकॉज ड्यू टू द हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 5000 डिग्री सेल्सियस inside the core region, so the rocks that are present inside the earth, so it is found in the molten form, इसलिए वो molten form में थे। अच्छा, अब ये जो molten material जिस जगह पे कलेक्ट रहता है, जिस जगह से कलेक्ट रहता है, तो उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं मैग्मा चेंबर। उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं मैग्मा चेंबर। अंडरस्टैंड?
अब हम लोग मैग्मा चैम्बर का रोल समझ लेते हैं। अगर आप लोग बेटा इस डायग्राम को थोड़ा सा स्टडी करें और इस डायग्राम को अगर हम लोग देखें तो ये समझ लेते हैं। अब बेटा अगर हम लोग इस कोन शेप को देखें, दैट इज द कोन शेप एंड दिस कोन शेप इज नोन एज द वॉल्केनो। अब जो ये पाइप है जो हमारे मैग्मा चैम्बर से कनेक्ट है, दिस पाइप इज नोन एज द वेंट, दिस पाइप इज नोन एज द वेंट। और देन आफ्टर दैट नाउ यू सी दैट this particular area where the hot magma is collected inside the earth, तो this place is known as the magma chamber और इसे हम लोग मैग्मा चैम्बर बोलते हैं। अंडरस्टैंड? तो नाउ दिस इज द मैग्मा चैम्बर। अब मैग्मा चैम्बर का रोल क्या है, अब इसे हम लोग समझ लेते हैं। एक्चुअली जहां पे ये मॉल्टेन मटेरियल कलेक्ट हो रहा है, उबल रहा है, ये बॉयल कर रहा है, अब इसकी वजह से इसके अंदर गैसेस प्रेजेंट हो रही हैं, इसके अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट हो रहा है, हीट बहुत ज्यादा है। तो ये जो गैसेस हैं, वाटर वेपर हैं, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। प्रेशर क्रिएट करने की वजह से जो मैग्मा चैम्बर में मैग्मा कलेक्ट है, अब वो वेंट के थ्रू धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना शुरू हो गया। अब जब धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो गया तो फिर उसके बाद प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से उसका एरप्शन हो गया। तो जब उसका एरप्शन हुआ तो जो हॉट मैग्मा था अब वो बाहर की तरफ आ गया, और जब वो बाहर की तरफ आया तो उसने लावा का फॉर्म किया। तो उस तरीके से मैग्मा चैम्बर का रोल है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज द प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनो। तो इन दिस point now you see that a volcano erupts the number of products like the steam, gases, molten rocks, dust, ashes and other liquids and the matter. Okay, अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। प्रोडक्ट्स का मतलब जो चीजें हमें मिल रही हैं, किससे, जब वॉल्केनिक एरप्शन हो रहा है तो क्या क्या चीजें उसमें बाहर आ रही हैं, तो उन प्रोडक्ट्स की बात हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग देखें यहां पे बुक में देखें तो यहां पे हम लोग देखते हैं स्टीम आ रही है, गैस आ रही है, मॉल्टेन रॉक्स आ रहे हैं, दैट इज द मैग्मा दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ एंड व्हेन द मैग्मा कम्स आउट ऑन द अर्थ सरफेस इट इज नोन एज द लावा। डस्ट आ रही है, एसेज आ रही है, एसेज जो राख होती है जलने के बाद जो चीजें होती हैं, एंड द अदर लिक्विड एंड द सॉलिड मैटर। नाउ पहली चीज हमें देखते हैं मैग्मा और लावा। तो मैग्मा और लावा को मैं एक बार आपको फिर से डिफाइन कर देता हूं, मैंने पहले ही बता दिया। द मॉल्टेन मटेरियल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ इट इज नोन एज द मैग्मा, एंड व्हेन द मैग्मा इज कम आउट ऑन द अर्थ सरफेस इट इज नोन एज द लावा, इट इज नोन एज द लावा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विल बी explained in the next video session. Okay, thank you.